Okay, so now we are going to discuss about next questions. The constitution allow to provide the fund in the advance for the essential expenditure which finally becomes a part of appropriation bill. So that is non vote on account. Vote on account. The correct statement of delegation. Delegation क्या होता है? It entail power to sanction new policies and departure from old practice. That is not the delegation. Delegation is reduce the burden. Delay is avoided in the administration process, and delegation help to develop second line leadership also. The theory that provided ideological basis for reform and administration, that is वुड्रो विल्सन. तो आइडियोलॉजिकल बेसिस जिस थ्योरी ने दिया था वो किसने दी थी? वुड्रो विल्सन ने. न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट स्टैंड फॉर स्ट्रक्चरल चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन. न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये स्ट्रक्चरल चेंज की बात नहीं करता है. क्लाइंट फोकस है, सोशल इक्विटी, रिलेवेंस, बस स्ट्रक्चरल चेंज की बात नहीं करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकेंड मिनरल बुक कॉन्फ्रेंस. तो इट थीम, टोन एंड टेनर वर रेडिकल. तो ऐसा तो नहीं है. इट पेव द वे फॉर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. तो सेकेंड हाँ, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया था. इट फोकस ऑन द लिबरलाइजेशन एंड रोज मेरी ऑलरेडी तो थर्ड मिनरल बुक में थी. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एम टू एस्टेब्लिश अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग, प्रेडिक्शन ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इन द एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशन. दैट वॉज बिहेवियरल अप्रोच. ठीक है. तो टेलरिज्म इज अ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दैट इट इज़ डेवलप्ड. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है टेलरिज्म की बात नहीं करता है. इट इज़ टॉक्स अबाउट द फॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके, तो वो रॉन्ग हो गया. द टर्म आयरन केक दिया था मैक्स वेबर ने. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन? पैट्रिक डनलिपी. तो मैक फॉरलैंड है, लूथर गुलिक फॉलेट है, बट डनलिपी कभी भी कोऑर्डिनेशन की बात नहीं करते. Okay, which of the following is the mathematical expression of Gracunas? That was n 2n/2 plus n minus 1. Who among the following has introduced the concept of knowledge worker? Peter Drucker. Maslow expanded transacted needs means helping others to achieve self-actualization. Situational theory of leadership. That was Hersey and Blanchard. The concept of representative bureaucracy. That was Donald Kingsley ने दिया था representative bureaucracy. Currently the relationship between president and the council of minister governed by, that was 44 amendment के according चलता है. The audit of the account of the state is subject of, that was union list. Audit किससे चल रहा है? union list से. Which is the following not a pair of ethical framework? So ethical framework का part नहीं है ना. So that is about the code of ethics. The code of ethics should be inter-included specific principle of the civil servant relationship. That was not the part of the ethical framework. The code of ethics should inter-included specific principle of the civil servant relationship. That is not. Now it should be gross. तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बता रहा है कि it would be a gross fallacy to regard the institution of governor as a faint presence like a full moon at midi. The role of governor is that of the sagacious arbiter rather than an active politician. So both are true in that. Okay, दोनों ही सही हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं. Which of the following recommendation not suggested by the second ARC? The school awareness program should be introduced. तो ये second ARC ने नहीं दिया था. मार्च रश का मतलब क्या होता है बजट में? दैट इज़ एक्सपेंडिचर. मार्च रश का मतलब क्या होता है? दैट इज़ रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर. सो 28 का डी है, वैसे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड नहीं है. मार्च रश इज़ बजटरी प्रैक्टिस कर्स बाय, दैट इज़ नॉट फॉर एक्सपेंडिचर एक्चुअली, दैट इज़ फॉर द रूल ऑफ लैप्स. दैट इज़ फॉर द रूल ऑफ लैप्स. मार्च रश इज़ रूल ऑफ लैप्स. एंड देन विच इज़ द फॉलोइंग सेकेंड ARC रिगार्डिंग द सिटीजन इनिशिएटिव फॉर मेंटेनिंग द एथिक्स? ठीक है, तो नॉट सजेस्ट किया था. तो यहाँ पे सिविल सोसाइटी शुड बी एक्टिवेटेड, दैट इज़ नॉट सजेस्टेड. तो यहाँ स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम भी इथिक्स में इंक्लूडेड था, बट सिविल सोसाइटी शुड बी एक्टिवेटेड, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट है नीति आयोग प्ले रोल इन द थिंक टैंक इन द टर्म ऑफ प्लानिंग एंड इट एक्ट एज ए नॉलेज नेटवर्क एंड सेंटर टू अप स्केल द लोकल इनोवेशन. सो क्वेश्चन नंबर 21 दोनों ही हैं, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. लोकल इनोवेशन ऐसी कोई बात नहीं की गई है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है रेसिंग द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो आर्टिकल 22 का आंसर सी है. न्यूट्रिशन की बात की गई थी. दैट वाज न्यूट्रिशन की बात जो की गई थी, इट वाज इन सॉरी क्वेश्चन नंबर 21, 23 एंड 36.
क्वेश्चन नंबर, वेट ए मिनट, कहाँ पे थे हम लोग, 21 है ना। नीति आयोग प्ले रोल इन द थिंक टैंक प्लानिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, न्यूट्रिशन वाली बात थी हमारी, है ना। तो न्यूट्रिशन जो है आर्टिकल जो है 47 में आ गया। नाउ नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर इन द टोटल फॉर्म ऑफ कैटेगरी ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटीज वुमेन लोकपाल इन इंडिया एज पर द प्रोविजन ऑफ लोकपाल। तो नॉट लेस देन 4, कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए। सो 23 का आंसर है सी, नॉट लेस देन 4 मेंबर। Which one of the following state has the highest level of the policy density as per the National Crime Record Bureau? तो मिजोरम जो है वहाँ पे हाईएस्ट पॉलिसी डेंसिटी है। सो क्वेश्चन नंबर 24 है डी, दैट वाज द मिजोरम, हाईएस्ट लेवल ऑफ द पॉलिसी डेंसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ हॉरिजेंटल अकाउंटेबिलिटी? हॉरिजेंटल अकाउंटेबिलिटी जो है सीबीआई ने इसकी बात की थी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच सीबीआई। So horizontal accountability is a coincide the executive branch of the state, that is CBI. Which is following objective training and development in the recent time? तो इसमें proactive needs, performance improvement, outcome and the talent management. Which is the following correct regarding the significance of the research? तो research aid new knowledge, research evaluate the ongoing public policy, research give the suggestions and research give the employment to the profession. Now next है, which is the following is a random sampling? तो random sampling होती है that is multi-stage sampling. Research study discovering and testing associate of certain variable, that was diagnostic study. Which is the following characteristics of the scientific method get reflected in the statement science never impose anything science state, that was ethical neutrality. Ethical neutrality में कहा गया है science never impose anything science state, science aim to nothing but the true. Now which is the following is not major bibliographic style? So 31 का आंसर है डी, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल स्टाइल इज नॉट द, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल स्टाइल नॉट द बिब्लियोग्राफिकल स्टाइल। बाकी अमेरिकन है, मॉडर्न लैंग्वेज है, शिकागो स्टाइल है। अमंग द फॉलोइंग इज द आइडेंटिफाइड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लान चेंज? तो प्लान चेंज की बात पाई पनीकर ने की थी। सो 32 का आंसर क्या है? दैट इज पाई पनीकर। ओके, now next is research is comparative public administration covering output aspect of the administration system, that was the डोरसे। तो डोरसे जो थे इन्होंने क्या कहा था कि आउटपुट एस्पेक्ट होता है, रिसर्च में क्या होता है, आउटपुट का एस्पेक्ट होता है। सो द रिसर्च इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड फोकस ऑन ऑल ऑफ इनपुट कन्वर्जन एंड आउटपुट एस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज द डोरसे। तो डोरसे ने इसको आउटपुट एस्पेक्ट बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपिंग? तो 34 है A, it promote the adherence to the procedure, so that is not in regard to the administrative development. Procedure की बात नहीं करेगा। It develop the administration concern with the functional changes and enhance the potentiality, but it adherence to the procedure, that is not true. Which is not correct regarding the neoliberal model ensuring microeconomical stability, that is not neoliberal. नियोलिबरल का मतलब होता है मिनिमम रोल ऑफ द गवर्नमेंट, एम्फेसिस प्राइस स्टेबिलिटी एंड आउटसोर्सिंग होनी चाहिए, बट माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात नहीं की है। ठीक है। यूएसए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड द सिविल सर्वेंट टू एंगेज इन द प्रॉफिट एक्टिविटी वाइल द परफॉर्मिंग ड्यूटी, दैट वाज हैच एक्ट है। हैच एक्ट में क्या है, यूएसए में मतलब जो है ड्यूटीज़ की बात की गई है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द फेडरल जज ऑफ अपॉइंटेड फॉर द लाइफ एंड कांट रिमूव फ्रॉम द ऑफिस दे विल ओनली थ्रू द इम्पीचमेंट। ओके, नाउ 37 हो गया, दैट इज़ ओके। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर है 38, विच इज़ फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट? तो देखिए, इट लुक इनटू द अफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये तो रॉन्ग ही है, क्योंकि एक्चुअली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो मैटर्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस नहीं देखता है। ठीक है, सो दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। बाकी सब राइट है कि ये जो डिसेबल्स हो गए, सब्सटेंस अब्यूज़ होता है या फिर सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके मैटर। Which is following is not advantage self-help group scheme uniformity in the program design? So that is not the advantage of self-help uniformity in the program design is not part of the self-help group. बाकी क्या है, space for community initiative developing capacity self management and draw upon the healthy tradition, but uniformity in the program design इसका part नहीं है। The direct benefit transfer, that is cabinet secretariat। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो मैटर है वो कौन देख रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरीट। इन विच ईयर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वाज 2013 में आ गया था ये। डिकंसंट्रेशन इज बेसिस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन डिवोल्यूशन ऑन पॉलिटिकल लीगल एक्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दैट वाज द मुतालिब।
मुतालिब ने बोला था ये, ठीक है। विच इज फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द रिक्वायर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग दैट वाज इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैडर मैनेजमेंट रिफॉर्म हैज ए सोल मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। विच फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ 11 शेड्यूल दैट वाज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी नॉट पार्ट ऑफ। विच इज द फॉलोइंग इज द सेकंड ARC about the ombudsman, it has power to investigate cases corruption maladministration। yes, so 1, 3 and 4 तो हमें ठीक लग रहा है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन भी गिवन टू द ombudsman, अभी तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है, ठीक है। नाउ 46 में है द एडमिशन प्रोसेस नीडेड टू द डीमिस्टिफाइड बिकॉज ऑफ मिस्टिफिकेशन इज ए स्ट्रेटेजी for the bureaucracy to let corruption grow. Demystification is a procedure has to followed by the decentralized power and provision for the participation of the empowerment of the people. So both are true but not explaining to each other. Which department of finance ministry issue notice regarding the constituent finance commission? तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर, ये ध्यान रखना है। फाइनेंस इज यूनिवर्सली इन्वॉल्व द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसने कहा था? मॉन्टेक्स मार्क्स ने। हु इज द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कैबिनेट द एफिशिएंट सीक्रेट दैट वाज द बैकहॉट, बैकहॉट ने इसको क्या कहा है? एफिशिएंट सीक्रेट, एफिशिएंट सीक्रेट बोल दिया है। नाउ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रीजनल एंड द गवर्नमेंट इंग्लैंड लाइज विथ ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। जो वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनके पास कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? इंग्लैंड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रीजनल और गवर्नमेंट की, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट। So this is